आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 1 सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 का फुल सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, एंड AB upon DE is equal to BC upon EF and AC upon DF, then triangle ABC and triangle DEF are similar। और इसको यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। एक ट्राइंगल का नाम हम लोग 6 वेज में लिखते हैं। तो अगर हम लोग ने लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल DFE and triangle BAC similar to triangle EDF, triangle BCA similar to triangle EFD, triangle CAB similar to triangle FDE, triangle CBA similar to triangle FED, और triangle CAB similar to triangle FDE। तो ऐसा हम लोग 6 वेज में क्या कर सकते हैं, इसको सिमिलर ट्राइंगल को लिखते हैं। Then test for similarity of triangles। फर्स्ट वन इज एंगल 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 टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, देन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सेकंड इज एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। देन इन ट्राइंगल ए बी सी and triangle DEF, angle A congruent to angle D, angle B congruent to angle E, then triangle ABC similar to triangle DEF by angle angle test for similarity of triangle। SS test for the similarity of triangles देखते हैं। in triangle ABC and triangle DEF, if AB upon DE is equal to BC upon EF and AC upon DF, then triangle ABC similar to triangle DEF by SS test for the similarity of triangles। थर्ड वन देखते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इन ट्राइंगल ABC and triangle DEF, if AB upon DE is equal to BC upon EF and angle B congruent to angle E, then triangle ABC similar to triangle DEF by side angle side test for the similarity of triangles। Properties of similar triangles। Number 1, triangle ABC similar to triangle ABC। If a triangle ABC similar to triangle ABC, then it is reflexivity, the same triangle is similar to itself। Second one, triangle ABC similar to triangle DEF and triangle DEF similar to triangle ABC। If one triangle is similar to second triangle, then second triangle is similar to first triangle। इस property को क्या बोलते हैं, symmetry। Then number 3, triangle ABC similar to triangle DEF and triangle DEF similar to triangle GHI, then triangle ABC similar to triangle GHI। First triangle is similar to second triangle is similar to third triangle, then first triangle is similar to the third triangle। इस property को क्या बोलते हैं, transitivity। Question number 1 देखते हैं। Given in figure angle ABC is equal to 75 degree and angle EDC is equal to 75 degrees, state which two triangles are similar and by which test, and also write the similarity of these two triangles by a proper 1-to-1 correspondence। यहाँ पे solution लिख देते हैं। angle ABC is equal to 75 degree and angle EDC is equal to 75 degree। यहाँ पे reason लिख देते हैं। given अगर दो एंगल का मेजर सेम है तो दोनों एंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। देन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, रीजन लिख देते हैं, ई मेजर 75 डिग्री। एंड इन ट्राइंगल ABC और EDC में देखते हैं एंगल C क्या है, कॉमन है। एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, कॉमन एंगल। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल
EDC। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D एंड एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कॉमन है, देन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। एक ट्राइंगल को हम लोग 6 वेज में नाम लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, अगर हम लोग नाम लिखते हैं ABC देन ट्राइंगल EDC, ट्राइंगल ACB सिमिलर टू ट्राइंगल DCE, देन ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल, अभी हम लोग नाम कैसे लिखा BAC देन DEC, ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल BCA सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम कैसे लोगों ने BCA देन DCE, ट्राइंगल DCE, देन ट्राइंगल इधर C से लिखते हैं CAB, ट्राइंगल CAB सिमिलर टू ट्राइंगल, यहाँ पे नाम कैसे लिखा, यहाँ पे CAB, देन ट्राइंगल CED सिमिलर टू ट्राइंगल CAD, ट्राइंगल CBA सिमिलर टू ट्राइंगल, नाम कैसे लिखा, यहाँ पे CBA, देन CDE। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 वेज में इसको ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एंगल एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, एंगल एंगल टेस्ट फॉर द सिमिलरिटी। और 6 वेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल PQR, PQ is equal to 6, QR is equal to 8 and PR is 10, and in triangle LMN, LM is equal to 3, MN is equal to 4 and NN is equal to 5। यहाँ पे देखेंगे ऑल साइड्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, PQ अपॉन LM and QR अपॉन MN and PR अपॉन LN। अगर रेशियो अगर सेम रहेगा तो ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, कौन सा टेस्ट, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, सेम टेबल से कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। सिमिलरली QR अपॉन MN इज इक्वल टू 8 अपॉन 4, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 4 2 जा 8 4 1 जा 4, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली PR अपॉन is equal to ln, PR is 10 and ln is 5, इसको भी कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10 5 1 जा 5, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, 2 upon 1 2 upon 1 2 upon 1, सबका रेशियो क्या है, यहाँ पे सेम है, तो PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN, then triangle PQR similar to triangle LMN by side test of similarity। यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN, यहाँ पे रेशियो लिख देते हैं, PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 में तीनों क्या है, सेम है, तो PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN, then triangle PQR similar to triangle LMN, कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पे, साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, as shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground if the length of the shadow of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ACB, AC is bigger pole and PR is smaller pole and QR is smaller shadow and BC is bigger shadow, and यहाँ पे AC is equal to कितना दिया 8 and PR is equal to 4 and QR is equal to 6। BC क्या करना है, फाइंड करना है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल ACB और PRQ को सिमिलर प्रूव करेंगे। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ACB PRQ 90 डिग्री and AC is perpendicular to BC and PR is perpendicular to QR given perpendicular to the ground, an angle BAC congruent to angle QPR shadow at the same time, then triangle ACB similar to triangle PRQ by angle test of similarity।
और जब दो साइड ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में होंगे। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्यूशन AC is equal to 8 meter height of bigger pole and PR is equal to 4 meter height of smaller pole. QR is equal to 6 meter shadow of smaller pole, and to find X shadow of bigger pole. In triangle ACB and triangle PRQ, angle ACB congruent to angle PRQ, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, given AC perpendicular to BC and PR perpendicular to QR. क्वेश्चन में दिया हुआ है two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. An angle BAC congruent to angle QPR, shadow at the same time. एक ही टाइम पे अगर रेज अपना रहता है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। Then triangle ACB similar to triangle PRQ, कौन सा टेस्ट लगेगा, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। देन AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाता है, प्रोपोर्शन हो जाते हैं। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AC अपने को यहाँ पे कितना दिया है 8 एंड PR इज इक्वल टू 4 एंड BC इज इक्वल टू X एंड QR इज इक्वल टू 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू X। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, X इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12, BC is equal to 12। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, the shadow of bigger pole is 12 meter। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC AP perpendicular to BC and BQ perpendicular to AC, BPC और AQC, then prove that triangle CPA similar to triangle CQB and AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12 and to find AC। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे AP परपेंडिकुलर टू BC, देन एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। यहाँ पे ईच एंगल इज 90 डिग्री और दोनों ट्राइंगल में एंगल C क्या है, कॉमन है। देन एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ट्राइंगल ये ले लेंगे, ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। तो पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। इन ट्राइंगल CPA एंड इन ट्राइंगल CQB, यहाँ पे एंगल ले लेते हैं, एंगल APC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BQC। रीजन लिख देते हैं, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, क्योंकि AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AC, तो एंगल जो रहेगा 90 डिग्री, तो ईच मेजर्स 90 डिग्री एंड एंगल C क्या है, कॉमन है, तो एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, कॉमन एंगल, और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। ट्राइंगल CPA सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो CP अपॉन CQ एंड AP अपॉन BQ एंड AC अपॉन BC। रीजन लिख देते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे क्या करते हैं, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे AP अपॉन BQ लिख लेते हैं एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे BC, ये वाला लिख लेते हैं, AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसका वैल्यू दिया है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। AP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 एंड BQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और AC क्या करना है, फाइंड आउट करना है एंड BC का वैल्यू कितना दिया 12। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
7/8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू, AC को यहीं पे रखते हैं, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देते हैं, 4 2 8 एंड 4 3 12, AC is equal to 7 multiplied by 3 divided by 2, 7 3 21/2, 21 का हाफ करते हैं 10.5, और यहाँ पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 10 20, 2 10 20 and 2 5 10, 10.5, then AC is equal to 10.5, आंसर लिख देते हैं, AC is equal to 10.5, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इन ट्रापेजियम PQRS side PQ parallel to side SR and AR is equal to 5AP and AS is equal to 5AQ, then prove that SR is equal to 5PQ। यहाँ पे देखेंगे कि ट्रापेजियम है, PQ parallel to SR and QS is the transversal, then angle PQS congruent to angle QSR, यहाँ पे alternate angle हो जाएंगे, then angle PQA congruent to angle RSA alternate angle, और ये vertically opposite angle हो जाएगा, angle PAQ congruent to angle SAR, then triangle PAQ similar to triangle RAS by angle test, और फिर बाद में corresponding sides का proportion लेके फिर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, उसको सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे इन ट्रापेजियम PQRS साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन एंड QS इज द ट्रांसवर्सल, देन एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSQ ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल रहेगा, एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, देन एंगल PQA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RSA, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे SAQ, ये कॉलिनियर पॉइंट है, तो एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQA and angle RSQ congruent to angle RSA, then in triangle PAQ and triangle RAS angle PQA congruent to angle RSA, यहाँ पे रीजन लिख दो, from equation 1 से एंगल PQA congruent to angle RSA alternate angle है, then angle PAQ congruent to angle RAS, रीजन लिख देते हैं, vertically opposite angle, एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल RAS, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, देन AP upon AR is equal to AQ upon AS is equal to PQ upon RS, रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSST भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहाँ पे देखेंगे, हमको यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, AR is equal to 5AP, यहाँ पे क्या करते हैं, AR का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, AR is equal to 5AP, then AP upon 5AP is equal to, और यहाँ पे हमको क्या प्रूव करना है, SR upon PQ, यहाँ पे क्या करते हैं, PQ upon RS लिख लेते हैं, यहाँ पे AP क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1/5 is equal to PQ upon RS, और इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, RS मल्टीप्लाई बाय 1, देन RS इज इक्वल टू 5PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS इज इक्वल टू 5PQ, इसको यहाँ पे रीअरेंज कर लेते हैं, SR इज इक्वल टू 5PQ, देन ये हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं, इन ट्रापेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड DC एंड डायगोनल AC एंड डायगोनल BD intersect in point O and AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15 to find OD। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग ने जैसा सॉल्व किया था सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे देखें, इन ट्रापेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड DC, साइड AB पैरेलल टू DC, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, गिवन
and BD is the transversal and segment BD is the transversal. AB parallel to CD and BD is the transversal. Then angle CDB congruent to angle CDB congruent to angle ABD. CDB congruent to ABD alternate angle. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं alternate angle. इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल CDO. एंगल CDO congruent to angle CDO congruent to angle ABO. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं BOD कोलिनियर पॉइंट्स है तो एंगल CDO congruent to एंगल ABO. यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल का नाम इधर लिखेंगे COD एंड ट्राइंगल AOB. ट्राइंगल AOB एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO ऑल्टरनेट एंगल एंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल COD congruent to angle AOB vertically opposite angle. In triangle COD and in triangle AOB, angle CDO congruent to angle ABO, angle COD congruent to angle AOB. जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमिलर. ट्राइंगल COD सिमिलर टू ट्राइंगल AOB. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे. OC upon OA is equal to OD upon OB is equal to CD upon AB. रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स और यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल CSST. यहाँ पे देखते हैं हम लोगों को अभी यहाँ पे OD फाइंड करना है. हमको ये वाला रेशियो लेना है एंड AB दिया हुआ है तो ये दोनों रेशियो ले लेते हैं. OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. OD फाइंड आउट करना है यहाँ पे एंड OB इज इक्वल टू 50 एंड CD इज इक्वल टू 6 एंड AB इज इक्वल टू 20. यहाँ पे OD फाइंड करना है तो इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. OD इज इक्वल टू 6 upon 20 multiplied by 15. यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं 5 3s are 15 5 4s are 20 6 multiplied by 3 divided by 4. इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं 2 2s are 4 2 3s are 6 3 3s are 9 upon 2 9 का हाफ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4.5. देन OD इज इक्वल टू 4.5. आंसर लिख देते हैं OD इज इक्वल टू 4.5. ये क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersect ray AB in point T. Then prove that DE multiplied by BE is equal to CE multiplied by TE. तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है 6 वाला सेम वैसे ही करेंगे. इसको भी यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं. quadrilateral ABCD is a parallelogram. रीजन लिख देते हैं यहाँ पे given. यहाँ पे AB parallel to CD, side AB parallel to side CD. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं opposite side of a parallelogram. opposite sides of a parallelogram. opposite side of a parallelogram. opposite होते हैं. then AT parallel to side CD. यहाँ पे AB parallel to CD then AT parallel to CD. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ABT. ये कॉलिनियर पॉइंट्स है AB को हम लोग AT भी लिख सकते हैं. एंड सेगमेंट DT is the transversal. AT parallel to CD and DT is the transversal. Angle ATD congruent to angle CDT. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं alternate angles. AT parallel to CD and DT is the transversal. Then ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे alternate angle. Angle ATD congruent to angle CDT. ATD को हम लोग क्या लिख देते हैं BTE. Angle BTE congruent to angle CDE. यहाँ पे रीजन लिख देते हैं
ए बी टी कॉलिनियर पॉइंट्स है एंड डी ई टी ये कॉलिनियर पॉइंट्स है, देन एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल बी ई टी एंड ट्राइंगल सी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई टी एंड इन ट्राइंगल सी ई डी। यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, एंगल बी टी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये वाला एंगल लिख देते हैं एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी। रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बी ई टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ई डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BET सिमिलर टू ट्राइंगल CED। रीजन यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। देन BE अपॉन CE इज इक्वल टू TE अपॉन DE इज इक्वल टू BT अपॉन CD। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ similar triangle, corresponding sides of similar triangles, इसको शॉर्ट फॉर्म में CSST भी लिख सकते हैं, corresponding side of similar triangle। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग DE, तो DE के लिए ये वाला रेशियो ले लेते हैं, तो TE के लिए, और यहाँ पे BE, तो BE के लिए दोनों, तो ये दोनों रेशियो ले लेते हैं। BE अपॉन CE इज इक्वल टू TE अपॉन DE, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DE मल्टीप्लाई बाय BE एंड CE मल्टीप्लाई बाय TE। इसको क्या करना था, प्रूफ करना है, प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, then prove that ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। यहाँ पे प्रूफ लिख देते हैं, इन ट्राइंगल, सेम ट्राइंगल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP यहाँ पे गिवन दिया है AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन। यहाँ पे देखते हैं AP अपॉन CP एंड BP अपॉन DP, और ये एंगल जो रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे देखेंगे AP अपॉन CP एंड BP अपॉन DP, ये वाला साइड, ये साइड, और ये वाला एंगल, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। देन ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट of similarity hence proved। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D on side BC in such a that angle BAC equal to angle ADC, एंगल BAC और ADC क्या इक्वल है, then prove that CA square is equal to CB multiply by CD। तो यहाँ पे देखते हैं, प्रूफ लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्राइंगल BAC, एंगल जो दिया BAC उसी को ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC। यहाँ पे दिया है एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं गिवन, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC क्या है, गिवन है। और इन ट्राइंगल ABC एंड ADC में एंगल C क्या है, कॉमन है। देन एंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन एंगल। और जब दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। रीजन लिख देते हैं एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। देन AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर
triangle corresponding sides of similar triangles, तो short form में corresponding side of similar triangle लिख सकते हैं, corresponding side of similar triangle। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे CA स्क्वायर, तो ये और ये वाला रेशियो जो रहेगा ले लेते हैं, AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, AC मल्टीप्लाई बाय AC इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई बाय DC। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, AC को क्या लिख देते हैं, CA मल्टीप्लाई बाय CA, और यहाँ पे क्या चाहिए CB, तो BC को क्या लिख देते हैं, CB मल्टीप्लाई बाय DC को क्या लिख देते हैं, CD। सेगमेंट को हम लोग AC और CA, और AC को CA, BC को CB और DC को क्या लिख देंगे, CD। CA मल्टीप्लाई बाय CA इज इक्वल टू CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय CD, as proved।